தொடர்ந்து உரை வழங்க ஸ்ரீ மகாந்த நாராயணகிரி ஜி மகாராஜ் சுவாமி அவர்களை அன்பு கொண்டு அழைக்கிறோம். ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बू फलचार भक्षणम उमास्तम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर सर्वभाज मंगजम। मंच पर उपस्थित हमारे सभी ऋषिगण और यहाँ पर उपस्थित नाम क्षत्रिय कुलों के समस्त बंधु, एक बार जोर से बोलना है, सनातन धर्म की जय बोलो, क्षत्रिय कुलम की, क्षत्रिय कुलम की। हमारा हिंदी है, थोड़ा तमिल में अनुवाद कौन करेगा? इधर में तमिल में अनुवाद करना है, कौन बोलेगा? அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம வந்து இந்த ஒரு விழாக்கு வந்து கலந்துருக்கோம். இப்போ நம்ம கிட்ட பேசுறவர் வந்து ஸ்ரீ நாராயணகிரிஜி, சொந்த ஊர் வந்து ராஜஸ்தான். இவரோட அமைப்பு வந்து காசியாபாத்தில் இருக்கு. மிகப்பெரிய அளவில் வந்து இவங்க போராட்டம் வந்து ராம் மந்திருக்கு பண்ணாங்க. இன்னைக்கு ராம் மந்திருக்கு வந்து முக்கியமாக குரல் கொடுறது வந்து சத்திரியர். இன்னைக்கு அந்த கோயில் கட்டுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் நம்ம சங்கடத்தில் இருக்க ஸ்ரீ நாராயணகிரிஜி அவர்கள். அவரோட ஆலோசனைகள் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு மக்கள் சத்திரியருக்கு சொல்ல விரும்புகிறாங்க. அதை வந்து நம்ம வந்து வரவேற்று ரொம்ப ரெண்டு கையும் நல்லா தட்டி அவரை வந்து வரவேற்கணும். हमारा विशेष रूप से देखिए कि संपूर्ण विश्व में क्षत्रिय कुल का मतलब होता है कि राजपूत का पुत्र, जो राजपूत है जिसने राज किया है, वो राज करने वाला जो है कोई ज़्यादा नहीं होता है। देखिए कि हमारा माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश में एक है, तो क्षत्रिय जो होते हैं कि वो सब जगह पूरा विश्व में राज करने वाले हैं। यहाँ पर सैल वंश हुआ, चाहे चिन्हई है नाम है, पूरा दुनिया में जो भी अपना जितने भी भारत में प्रांत में, चाहे पूरा विश्व के अंदर में प्राचीन समय में आज से करोड़ों साल पहले से ही भगवान राम को भी जब भगवान विष्णु के रूप में अवतार लेके धरती पर आए थे, तो सबसे पहले क्या है कि वो क्षत्रिय व्यवस्था बनाने के लिए क्षत्रिय कुल में जन्म लिया। राम है, कृष्ण है, ये हमारा जैसे विशेष रूप से 3 कुल होता है, जैसे सूर्य कुल है, क्षत्रिय चंद्र कुल है और अग्नि कुल। आप लोग यहाँ अग्नि के रूप में सबको मानते हैं, अग्नि के रूप में மக்களே, ஹிந்தி வார்த்தையில் வந்து சில அர்த்தங்களுக்கு தமிழுக்கு வந்து அர்த்தங்கள் மாறும். சில வார்த்தைகள் வந்து மாறியிருந்தால் கொஞ்சம் மன்னிச்சிருங்க. நம்ம குருஜி, சுவாமி குருஜி வந்து சொல்கிறது வந்து என்னன்னா, ராஜ்புத்திர பேர் வந்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன, ராஜா வந்து இந்த நாட்டை ஆடினான், உலகம் முழுக்க ஆடினா, அதனால தான் ராஜ்புத்திர பேரே வந்தது. வடநாட்டு சென்னை தவிர வடநாட்டில் வந்து எல்லாருமே ராஜ்புத் தான் கூப்பிடுவாங்க. ஏன்னா ராஜ்யம் வந்து 1000 வருஷமா இங்க பண்ணியிருக்காங்க. ராம் வந்து சிவன் ரூப்ல வந்து இந்த பூமிக்கு வந்து அவர் வந்து அவதாரம் எடுக்கும் போது சில நல்ல காரியங்கள் இந்த மண்ணுக்கு செஞ்சு இன்னைக்கு வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டா வந்து 2000 வருஷோட வரலாறு இன்னைக்கு இருக்குதுன்னா, அதை வந்து ராம் வந்து விஷ்ணு ரூப்ல வந்து இந்த பூமிக்கு வந்து கால் எடுத்தது தான். हमारा देखिए कि भाषा कोई भी हो, भाषा से क्या है कि हम लोग हमारा देखिए मेहपाल मकराना जी है, हमेशा से पूरा देश में दौड़ते रहते हैं, सबके लिए जो बोलते रहते हैं कि हमारा करणी सेना के अध्यक्ष है हमारा स्वामी नटराज जी, हमको कई बार यहाँ पर बुलाया और इन्होंने हमारा दुधेश्वर मंदिर में जो रावण के पिता विश्वसर्वा ने, जो ऋषि है रावण के पिता विश्वसर्वा, और वो शिवलिंग को स्थापना किया। बहुत प्राचीन शिवलिंग है, वहाँ पर गाय आके दूध देता था और वो प्रकट हुए हैं। तो पूरा दुनिया में कहीं पर भी जहाँ भी क्षत्रिय रहते हैं, वो क्षत्रिय का काम है कि अनुशासन करना, राज करना और सबको न्याय देना, ये क्षत्रिय का काम होते हैं। ராவனோட பிதா அவர்கள் வந்து இந்த பூமிக்கு வரும்போது வந்து வன்னியர் குல சத்திரியர், ஏன்னா சத்திரியர் தனியாக சொல்ல வரல, வன்னியர் குல சத்திரியர் தான் சொல்லணும். அவங்களோட முக்கியமான வேலை அன்னைக்கு இருந்தது வந்து இந்த நாட்டை ஆண்டது, இந்த நாட்டில் ராஜ்யம் பண்ணது. எங்கெங்கெல்லாம் அநியாயம் நடந்ததோ அந்த அநியாயத்தை தட்டி கேட்டு அந்த நியாயத்தை வந்து நிலைநிறுத்தது தான் வந்து ஒரு வன்னியர் குல சத்திரியரோட வந்து முக்கியமான காரணத்தை சேர்ந்து हमारा पूरा दुनिया में आप देखिए कहीं पर भी हमारा अभी इस टाइम में 500 वर्षों के बाद में राम मंदिर जो बना, और यहाँ पर तमिलनाडु के जो
वनम क्षत्रिय कुलम है, वो 15,000 जाके उसको तोड़ दिया, वहां से हटा दिया। ये पूरा दुनिया के अंदर में बहुत लोगों का नाम आया, परंतु असली जो है वहां से जो ढांचे को हटाया है वो तमिलनाडु के क्षत्रिय कुल ने हटाया है। அயோத்தியாவில் வந்து 1992 வந்து அயோத்தியா பாபர் மசூதி வந்து இடிக்கப்பட்டது வந்து முக்கியமான 15,000 பேர் வந்து அன்னைக்கு வழக்கு தொடர்றாங்க. அதுல வந்து முக்கியமான வந்து தமிழ்நாட்டுல இருந்து நிறைய பேர் வந்து அந்த போராட்டத்துக்கு கலந்துங்கினாங்க. அந்த போராட்டத்துல வந்து அதிகமான பேர் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் கேஸ் ஆயிருக்கிறது வந்து சத்திரிய குழுவினர் தான் வந்து சொல்றாங்க. இது நம்மளுக்குள்ள வந்து ஒரு பெருமையான விஷயம். अभी हमारे जो अभी बोल रहे थे जो होम ट्रस्ट के जो पुत्र है वो उधर बैठे हुए सबसे आगे कुर्सी में, वो क्या है कि पूरा भारत में हमारा दुधेश्वर वेद विद्यालय है, 100 विद्यार्थी यहाँ भी उनके पिताजी ने बहुत बार बुलाया। तो हमेशा से क्षत्रिय जो है वो पूरा भारत में नहीं पूरा विश्व में सनातन धर्म को उत्थान का काम करता है। और राज करने के लिए क्या होता है कि उसका संख्या का जरूरत नहीं है कि भाई कितना संख्या होना चाहिए, वो नहीं, संख्या कितना भी हो थोड़ा हो, जो राजा तो एक ही होता है। तो वो हमेशा से प्राचीन कुल से ही क्षत्रियों ने राज किया है। जैसे हमारे राम जन्मभूमि में हमारे वहाँ पर एक बाबू का पुरवा है, अयोध्या के पास में एक गांव है जिसका नाम है बाबू का पुरवा। वहाँ के क्षत्रियों ने जो है 500 साल तक, जब तक उनके मन में था कि हमारा पिताजी दादाजी परदादाजी बोल के गए हैं कि मंदिर इसी जगह पर बनेगा चाहे प्रतीक्षा कितना भी बने, तो क्षत्रियों के संकल्प को वो सिद्ध हुआ और आज वहाँ पर दिव्य और भव्य मंदिर बना। 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு வரலாறுல வந்து ஒரு பகுதியா வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ராம் மந்திர் வந்து அயோத்தியில தான் கட்டி ஆகணும், வேற எங்கேயோ கட்டுறதுக்கு வந்து அது இடம் மாத்தாதீங்க. இது 500 வருஷம் முன்னாடி வந்து இது எழுதப்பட்ட ஒரு புராணத்துல இருக்கிற ஒரு இடத்துல வந்து இது எழுதியிருக்காங்க. இன்னைக்கு வந்து அந்த இடத்துல கட்டி இன்னைக்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய வந்து ஒரு மக்கள் தொகை இருக்கிற வந்து அங்கே போய் கும்பிடுறாங்கன்னா, அதுக்கு வந்து 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஆளுங்க வந்து அங்க வந்து எழுதி வச்ச ஒரு காரணத்தினாலதான் இன்னைக்கு அயோத்தியில கட்டப்பட்டது. இன்னைக்கு அயோத்தியில வந்து ராம மந்திர் கட்டியிருக்க வாய்ப்பே கிடையாதுன்னு வந்து நம்ம மகாராஜி சொல்றாங்க. ஏன்னா அவர் வடநடிகாட்டில் வந்து ஒரு 30 வருஷமா இந்த ராம மந்திர் கட்டுறதுக்கு பின்னாடி பல ரிசர்ச் பண்றாங்க, பல விஷயத்தை வந்து எடுத்துக்காட்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரிவிக்கிறாங்க. அதனால அவர் சொல்றதை வந்து இந்த உலகத்திலேயே இவ்வளவு சிறப்பா இவ்வளவு கரெக்டா வந்து யாராலும் சொல்ல முடியாது. அதனால இவர் சொல்றதுக்கு வந்து எல்லா ஒரு வார்த்தைக்கும் நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்கு. महाराज जी, पूरे भारत में जो हमारा छत्तीस स्कूल चलता है, ये क्षत्रियों का छत्तीस स्कूल है, तो ऐसा बोला जाता है कि 10 पुत्र जो है वो सूर्य के 10 पुत्र हैं. இங்க வந்து உலகம் உள்ள இந்தியா ஃபுல்லா வந்து சத்திரியங்களால இயக்கப்படுற பள்ளி ஸ்கூல் இதெல்லாம் வந்து அதுல 100 பேர் वो 10 पुत्र सूर्य के சூரிய வம்சத்துல இருந்தா அக்னிகுல வன்னிகுல ராஜ்பூத் எல்லாருமே வராங்க. அதுல வந்து சூரிய பகவானுக்கு வந்து 10 புத்திரர்கள் 10 குழந்தைங்க வந்து இருந்தான்னு சொல்றாங்க. चंद्रमा के 10 पुत्र, அதே மாதிரி சந்திரமாக்கு வந்து 10 குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. 12 पुत्र ऋषियों के, அதாவது 12 குழந்தைகள் வந்து ரிஷினா நம்ம வந்து நம்மள நீங்க உட்காந்துருக்க நிறைய பேர் ரிஷி, அதனால அவங்களுக்கு வந்து 12 குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு வரலாறு எழுதியிருக்குன்னு சொல்றாங்க. और जो है वो अग्नि के 4 पुत्र, அக்னி குலத்துக்கு வந்து 4 குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. अग्नि वंश जो है वो इस तरह से जैसे आबू पर्वत है, हमारे जो आबू के अंदर में पर्वत है, वहाँ मैं ऋषि वशिष्ठ, जब पूरा दुनिया के अंदर राम के भी गुरु थे, मैं ऋषि वशिष्ठ जी ने एक के अंदर में 4 पुत्रों को जन्म दिया, तो इस तरह से वो 36 कुल हो गया. கொஞ்சம் மன்னிக்கணும், சில வார்த்தைகள் தவறாக இருந்தால் மன்னிச்சிருங்க. ஏன்னா அவங்க கொஞ்சம் ரொம்ப ஆழமான அர்த்தங்கள் சொல்றாங்க. இப்போ வந்து ரிஷிகளுக்கு வந்து 4 குழந்தைங்க இருக்கும் போது உலகத்துல நிறைய அத்தியாச்சாரம் நடந்துட்டு இருக்குது. அதை வந்து சரி பண்ணணும், அதுக்கு வந்து அக்னிகுல சத்திரியர்கள் வந்து உருவாக்குறாங்க, ஒரு யாகம் பண்ணி இந்த ரிஷிக்கெல்லாம் ஒன்னா சேர்றாங்க, இந்த பூமியில வந்து ஒரு நியாயம் வரணும்னு சொல்றதுக்கோசம் அக்னிகுல சத்திரியர்கள் வந்து உருவாக்குறாங்க. धर्म का जब भी हानि होगा या धर्म का कभी विनाश होने के ऊपर में कभी भी जो है रक्षा करने के लिए हमेशा से क्षत्रिय इस पृथ्वी को बचाने के, धरती के बचाने के कोई भी रूप में क्षत्रिय आते हैं. और वो किसी भी रूप में आए, वो संख्या चाहे कितना भी कम हो, जो हमेशा से साधु संतों का, ऋषियों का, धर्म का, गौ माता का और समाज के अंदर में बैलेंस संतुलन बनाने का हमेशा से क्षत्रियों ने काम किया है.
இந்த உலகத்துல முக்கியமா நம்ம பாரதத்துல நம்ம ரிஷிகள் நம்ம சாமிஜி யார் யார் இங்க வந்து இந்த குலத்தை வந்து காப்பாத்துறதுக்கு முக்கியமான பங்கு வந்து பல ஆண்டுகளை எடுத்திருக்காங்க. அவங்களோட முக்கியமான தர்மமே வந்து என்னன்னா இங்க எப்பவுமே நியாயம் வந்து இந்த பூமியில எப்பவுமே இருக்கணும், யாருக்குமே அநியாயம் நடக்கக்கூடாது. அதை காப்பாத்துறதுக்கு முக்கியமான வந்து பங்கு வந்து சத்திரியருக்கு எப்பவுமே புராண காலத்துல இருந்தே இருந்திருக்கு. मैं यहाँ पर आया तो हमें सुना कि हमारा जो यहाँ पर जो क्षत्रिय जो है वो तमिलनाडु में कुछ कम संख्या में है और यहाँ पर कुछ आरक्षण का भी मांग किया है। क्षत्रिय हमेशा से वो देने वाला होता है। हमारे स्वामी जी भी बोल रहे थे कि क्षत्रिय हमेशा से वो राज किया है और देने वाला होता है। तो हमेशा से चाहे हम लोग कितना भी कम संख्या में हो वो हमेशा राज किया है। तो इसमें कभी भी घबराना नहीं है, हमारा परिश्रम करना, मेहनत करना। एक क्षत्रिय व्यक्ति कहीं पर भी, जब मैं देखा मलेशिया में गया, कंबोडिया में, बहुत से देशों में गया तो वहाँ पर क्षत्रिय राजाओं ने वहाँ भी राज किया है। और यहाँ चेन्नई सेवा वगैरह गए, यहाँ तमिलनाडु से जाकर जो है मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह और सिंगापुर वगैरह जाके वहाँ पर बहुत जगह पर जो उसका पूरा विस्तार किया है। तो हमारा जो क्षत्रिय है वो दुनिया में कहीं पर भी जाए, एक जना जाने के बाद में वहाँ पर वो राज करता है, वो उसके अंदर में ये क्षमता है जी। महाराज जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में वन्य कुल क्षत्रिय की संख्या कम नहीं है, हम सबसे बहुमत है और 38% है जो वन्य तमिलनाडु में रहते हैं। ये सबसे बड़ी संख्या में रहते हैं, ये सबसे बड़ी जाति है, ये कोई कम जाति नहीं है। आरक्षण हम लोगों ने मांगा क्योंकि आरक्षण को मिला नहीं है। 10% जो हम लोगों ने मांगा था वो आरक्षण ने, जो सरकार यहाँ पर चलती है उन्होंने हमको आरक्षण नहीं देने से मना कर दिया है। जबकि यहाँ पर आप कहीं पर भी कोई भी जो रिकॉर्ड है उसमें 2011 में जब सेंसस लिया था उसमें क्षत्रिय वन्य कुल क्षत्रिय 36% है, जो सबसे बड़ी आबादी है तमिलनाडु में। और ना कि तमिलनाडु में, यहाँ पर जो तेलंगाना है, कर्नाटक है, केरला में, दक्षिण भारत में कोई भी जगह हो, यहाँ पर वन्य कुल क्षत्रिय तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। इसलिए आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा गलत सूचना आपको मिला है। मेरे को कहीं वहाँ पे पढ़ा था, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत से ऐसी होती है कि उपजाति भी होता है, जाति के अंदर में उपजाति। मान लो भाई आपका भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, ऐसा भी होता है। हम लोग एक ही हैं, हम सूर्यवंशी हैं और हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा कुल है वो है जम्मू महाराज जी। और किसी दिल खोल के बोलेंगे, हर एक वन्य से पूछिए, तमिलनाडु में कम से कम 3 करोड़ की आबादी होगी क्षत्रियों की, इसमें कोई भी संख्या कम नहीं हो सकती। ये हम लोग दिल ठोक के कहते, ये है ना 2011 का रिकॉर्ड है, ये आज का रिकॉर्ड नहीं है। ये 2011 का जो रिकॉर्ड है उसके बाद सेंसस नहीं लिया था, इसलिए सबसे ज्यादा आबादी है। यहाँ पर हम राज करने में कुछ सरकारों में कुछ लोगों का योगदान की वजह से हम लोग नहीं आए, बल्कि हमारा योगदान सबसे ज्यादा महत्व है। वो हमेशा से क्षत्रियों का योगदान आगे ही रहेगा, हमेशा आगे रहेगा। इसमें कोई इतिहास कोई बदल नहीं सकता, इतिहास कोई बदल नहीं सकता। वो देखिए कि पूरा भारत के अंदर में 8 करोड़ से भी ज्यादा क्षत्रिय है। अभी वो क्या है कि आप कुछ भाई के आप लोग छोड़ दिया, तो उसको भी साथ लाने की जरूरत है। हम लोग कभी छोड़ेंगे नहीं, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। वो सबको एक हो गया रहना है। अभी हमारे महिपाल मकराना जी आगे सब सारी बात बताएंगे और भी बहुत सारी। बहुत धन्यवाद। ரொம்ப நம்ம நன்றி மகாராஜ் நாராயண கிரிஜிக்கு ஒரு கையை தட்டல, நம்ம கிட்ட சில விஷயங்கள் சொன்னதுக்கு ஜோர கை தட்டுங்க. நன்றி, வணக்கம். வன்னி இது ஒரு நிலப்பரப்பின் பெயர் அல்ல, காலங்கள் தாண்டியும் நிமிர்ந்து நிற்கும் ஒரு இனத்தின் வரலாறு.